अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे साथ एक बहुत ही आइकॉनिक सी पर्सनालिटी मौजूद है, क्योंकि अगर मैं इन्हें इनके प्रोफेशन के लिहाज से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो वो नाइंसाफ़ी होगी, बिकॉज ही इज़ एन आइकॉन व्हेन इट कम्स टू his personal style, when it comes to styling homes, making them look even more beautiful. तो खूबसूरती लाना हर चीज़ में इनका काम है। मैं बात कर रही हूँ हमजा ताडर। अस्सलाम वालेकुम हमजा। How are you? Hamza, you look like a furniture piece yourself also. You look so good. Do I look dead then? No, you look so alive and so great in terms of your whole look. Thank you for the lovely introduction. That was very No, sweet. because ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जब इंटीरियर्स का कॉन्सेप्ट आया, जब घरों को बनाने का, सजाने का एक रिवाज शुरू हुआ, तो उसमें आपका नाम उस फहरिस्त में सबसे पहले ही रहा था। Yeah, because when I came, I was in America and I decided कि I want to bring all these brands to Pakistan. Because उससे पहले होता ये था कि any furniture store that you would go to, आगे पीछे बस चीज़ें पड़ी हुई होती थी and random सी and ये दे देंगे और मॉडर्न करना है तो वही नानी अम्मा का सोफा लाल रंग में कोशिश कर देंगे, पीछे दीवार नीली कर देंगे, तो this is modern. Right. So when I went abroad and I saw what I saw, it's a whole different world, and एक जगह is like a canvas and people can use so many different things to जो इसमें important होती हैं, be it lighting, be it space planning. So then I decided to bring all these brands here, and जो कुछ मैंने बाहर कमाया था वो खर्च के I opened up my store. So we were the first store in Pakistan that actually made spaces inside a store, जो कि जगह बनी हुई थी, कि एक lounge बना हुआ है, की जगह. And even when I was setting it up, so my mother would say, तुमने इतनी ज़्यादा जगह लेके ज़ाया नहीं कर दी है, ज़ाया हो गई है सारी जगह. So I would then explain कि जब तक आप एक चीज़ को सेट करके नहीं दिखाएंगे तो उसकी वो लुक ही नहीं निकलती. And it was the first all white store. ये जो white का सारा concept था, so we did that, and then after our store, then every store changed the way they did their planning and सारा वो. It was actually the first store. ये कहना गलत नहीं होगा कि white, सफ़ेद रंग आपका favorite color है. That is true. That is absolutely true. Because I feel my own house तो हमेशा से white रहा है, but I feel कि you can never go wrong with white. And white gives you a very soft, very open, very welcoming feel also. Now I've started playing a lot with colors. पाकिस्तान में रह के लोगों के साथ काम करके I have switched to a lot of other colors, and obviously I can't impose myself on people. I'm not one of those designers कि आपका घर लगे मेरा शोरूम. जो कि हर कहीं ज़्यादातर होते हैं कि वो लगता है ऐसे कि वो उनका शोरूम लगने लग जाता है. उनका घर नहीं लगता. I always feel कि your house should be your personality with my finesse. I should just add finesse to your personality. उसको visualize कैसे करना है, and it should look like your house. It should show that आपको क्या चीज़ें पसंद हैं. If your favorite color is Firozi, then my job is to make Firozi look beautiful. That's how. So I've learned to play with color. I used to be very minimal and modern जब मैं नया आया था. Then पाकिस्तान में रहने के बाद gold and the chandeliers and all of that. Then you have to adapt to your clientele and the way people are here. मैं Miami का आदी था, यहाँ पे आके तो obviously बदल जाता है बंदा. But we still try to do something different all the time. मैंने एक दो बाथरूम देखे थे आपके बने हुए. वो बाथरूम से ज़्यादा ड्राइंग रूम थे. बिल्कुल सही बात है, because देखिए we spend a lot of time in our bathroom, so why should a bathroom look like a पहले मैं कंफ्यूज हो गई कि ड्राइंग रूम में टब क्यों है. Because I feel that bathrooms are very important in a house, and we spend so much money on them nowadays. अब तो कुछ भी सस्ता नहीं है. Absolutely. But जब इतने पैसे लगा ही रहे हैं तो कम से कम उसकी शक्ल तो ऐसी निकले कि आपका अंदर जाने पे दिल करे. और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. And if you can afford. But even एक हमारे मुल्क की अच्छी बात है कि thanks to आजकल तो नहीं खैर, but thanks to जब चाइनीज़ चीज़ें आती थी यहाँ पे कि we had options. Even अभी भी हमारे पास options हैं. अभी स्टॉक पड़ा होगा. हाँ नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं. टाइलें भी आ गई हुई हैं, faucets. ये बात ठीक है. हाँ. ये बात ठीक है. We have options कि हमारे पास पाकिस्तान में अब बहुत options हैं कि आप एक जो
अगर बाथरूम को ही ले लें, वो आप जहाँ 10 लाख में बना सकते हैं वही आप 2 लाख में भी बना सकते हैं with options that are available in the market. Obviously there is going to be a difference in the look जिसने उस तरह से देखना है, बट अगर एक मार्बल लगाने की जगह आप उसी मार्बल की टाइल लगा लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे विजुअल शक्ल वो निकाल सकते हैं, हो सकता है। हाँ, so I'm not one of those stubborn people that would tell a client नहीं यहाँ पे यही लगेगा, इटालियन मार्बल, हाँ, आप बेशक आपकी कमर टूट जाए इसको लेने के लिए। I always give clients options that अगर आपका नहीं दिल है ये महंगा है आपके लिए, तो इसकी पे ये options हैं हमारे पास। हर चीज़ की आखिरी ऑप्शन होती है, हम खुद बना देते हैं आपको। right. So we give them options because देखिए जब एक बंदा घर बना रहा होता है, it's not easy to make a house. बंदा सारी ज़िंदगी पैसे जोड़कर पैसे इकट्ठे करता है and builds a house for himself. तो जब बनाते बनाते जब तक वो एंड तक पहुंचता है, इंटीरियर तक पहुंचता है, उसकी कमर टूट चुकी हुई होती है, पैसे ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। सो वी डोंट वांट टू फर्दर उनके लिए एंड हमारा आदत होती है, आई ऑलवेज टेल अ क्लाइंट कि हमें एक ग्रे स्ट्रक्चर पे हायर करें। नेवर हायर एन इंटीरियर डिज़ाइनर जब घर पूरा हो गया हो, क्योंकि लेकिन उल्टा ही होता है इसका कि जब घर मुकम्मल होता है तब इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर छतें दोबारा टूटती हैं, फिर वायरिंग दोबारा हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे ये क्यों है, यहाँ पे तो शैंडलियर नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे लगना चाहिए। So when you hire an interior designer, आपको लाइट का एस्पेक्ट भी देखना होता है। Because architects only focus on the structure of the house, and they cannot work on interior architecture. Absolutely. Interior architecture is a whole other game. Light कैसे आनी है, artificial light, formal light, मतलब आपकी जो draping है, mediums हैं, क्या किसके साथ क्या अच्छा लगेगा. So it's very important that you hire an interior designer when you are done with your structure, right? And उससे आपके पैसे बहुत बचते हैं. Like all my clients, I'm probably the most expensive interior designer इस वक्त in Pakistan, but हम उनको ये guarantee देते हैं that उनकी cost of construction हम at least जितनी मेरी फीस होती है ना, उससे ज़्यादा हम नीचे लेके आते हैं. अच्छा, तो अब आपने खुद बात एडमिट कर ली कि सबसे महंगे तरीन इंटीरियर डिज़ाइनर आप हैं. Probably. तो सारे रिच एंड फेमस भी आप ही के पास आते होंगे? बहुत ज़्यादा. हमने we've done over 500 residences अब तक इन 15 सालों में. और इसमें मुश्किल कितने थे? मुश्किल देखिए, हर प्रोजेक्ट में मुश्किलात आती हैं. कहीं जो मुझे अच्छे लगते हैं जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुश्किल इन द वे कि व्हेन अ क्लाइंट चैलेंजेस यू, वरना हमारे साथ जो होता है कि चैलेंज करना और फिर अपनी मर्जी ही एग्जैक्टली चाहना, उसमें फर्क. वो मैं आपको बताता हूँ. क्लाइंट को हम, क्योंकि वी मेक 3D रेंडरिंग्स हमारी जो होती हैं वो हम बाहर से बनवाते हैं, इंटीरियर्स में कोई भी नहीं बना के देता, बट वी शो देम एन इमेज ऑफ द रूम बिफोर द रूम इवन स्टार्ट्स, एंड वो एग्जैक्टली वैसी होती है कि लाइट की इवन कैसे आएगी, वॉलपेपर का प्रिंट भी उसमें नज़र आता है. सो वो जब वो कमरा देखते हैं बना हुआ, तो यूजुअली 98% ऑफ द टाइम दे से वाओ, एंड दे से अप्रूव हो जाता है पहले ही दफ़ा में. अच्छा, ये है कि अभी तक 98% पहला, अगर वो नहीं अप्रूव होता तो वी विल कीप मेकिंग देम ऑप्शंस until they are satisfied. बेशक मुझे 50 क्यों ना बनानी पड़े, एंड वी पे फॉर दीज. हमें भी रेंडरिंग्स बहुत ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवानी पड़ती हैं, पर कई दफ़ा ऐसे मुझे 12 भी एक कमरे की बनवानी पड़ी थी. Oh God. Which costed me more than the design fee itself. Absolutely. But then we have to do it. Then that's part of my job, that I have to make sure that the client is happy, satisfied. And कई दफ़ा होता है कि client satisfied हो जाता है, मैं नहीं होता. There was actually a house that I was doing in Lahore, Model Town में, and एक drawing room था. It was quite an expensive, उस पर काफ़ी पैसे लग गए हुए थे, and पूरा हो गया था, and client को बहुत पसंद आया था. But when I entered, मुझे वो click नहीं किया. There was something about that I didn't like. Don't tell me that कि आप I खुश नहीं हो. scrapped the entire room and I redid it on my expense. And the client was like, नहीं ये ठीक है हमें, या फिर okay with it. I said नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, because I don't advertise now, and I think my work is my advertisement, and if I feel it's like my एक होता है ना, बहुत टची होते हैं आर्टिस्ट अपने आर्ट के बारे में कि किस तरह से होनी चाहिए क्या. जब मैं क्लाइंट की पर्सनालिटी को जान लेता हूँ, जब हम उनको एक डिज़ाइन बना के दे देते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, देन अगर उसमें कोई गलती आ जाए तो वो फिर मेरी गलती है. And I have to make sure कि वो चीज़ it should
मेरे लिए सबसे खुशी की चीज़ होती है कि जब मैं क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट दिखाता हूँ ना, तो जो उनकी शक्ल का एक्सप्रेशन होता है, दैट डज इट फॉर मी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंस। तो वो हमेशा वाव ही होना चाहिए, वो ये नहीं तो एक असल आर्टिस्ट की निशानी हो गई। जो आजकल हम पॉपअप इंटीरियर डेकोरेशन या डिज़ाइनर स्टोर्स देख रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन सोशल मीडिया, कोई भी लड़का या लड़की यंग ग्रेजुएट्स होंगे, वो अपनी दुकान सोशल मीडिया पे छोटी मोटी चला रहे हैं और शायद कुछ चल भी रही है, क्या कहेंगे आप उनके? देखिए, मेरे अब तक 40 people have gone out of my company and set up their companies and are working successfully in the market. Successfully. हाँ, and they're doing quite well, but वो उधर ही फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकले थे, क्योंकि वो जितना सीखा है, वो जब सीखते हैं वो कहते हैं कि हमने बस सीख लिया, ठहर गए, फिर वो वही चीज़ करी जा रहे हैं। Correct. But I always support these people. Why? Because देखिए, मेरी तो जो रोज़ी लिखी है वो तो मुझे मिलनी है, and people who are going to be my clients are going to be my clients no matter what. If through me or inspired by me or trained by me, not trained by me, कोई एक आंटी आज उठती हैं, वो कहती है मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, या एक बच्चा उठ के कहता है मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, एंड इफ़ सोशल मीडिया अगर उनको एक तरीका मिल रहा है फॉर देम टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट्स ग्रेट, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट दैम। मैं ऑनलाइन इतने बिजनेसेस हैं, हमारा फ़ायदा इस तरह होता है कि हमें चीज़ें ढूंढने बाजार अब नहीं जाना पड़ता। अच्छा। तो हमें कई चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं, लाइक यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांटर्स, और लाइक फॉर एग्जांपल फ्लावर्स और थिंग्स लाइक दैट। सो देन आई गिव दीज बच्चास दीज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, उनका भी काम हो जाता है, हमें भी फ़ायदा हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, ये आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मेरे काम के से निकल के मेरे जैसे नाम रख के मेरे काम कॉपी भी कर रहे होते, मैं फिर भी कहता हूँ चलो शाबाश, अच्छी बात है, करो, क्योंकि इट्स ओके। आई फील दैट at the end of the day our economy should do better, so if people, more people are working, then let them work. But गलत काम ना करें, वो फिर मुझे ब्लंडर लगता है। मैं इसी पे आना चाह रही थी कि गलत काम जब वो डिलीवर करते हैं, ये बहुत मसला है हमारी लेबर फोर्स से। तो मुझे एक मैं एग्जीक्यूशन छोड़ दी हुई है, आई जस्ट डिज़ाइन नाउ, बिकॉज हमारी लेबर फोर्स को पता नहीं क्या है पाकिस्तान में। आप जब काम नहीं होता तो आ जाएंगे, सर जी काम नहीं है, पे काम दे दो, जैसे ही काम देंगे तू कौन, मैं खाम खा, आज चाचा फौत हो गया, कल मासी फौत हो गई है, आएंगे नहीं काम पे। जबकि व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर मेरे से एक बंदे को काम मिल रहा है, अगर मुझे वो एक अच्छा काम करके देगा, मैं उसको शायद 10 और काम दे दूं, बट उनका ना एक टाइम पे जो एक काम मिला होता है ना, बस पैसे आ गए ना, बस आज का दिन गुजर जाए वाली। It's very difficult to find reliable people to work with in Pakistan, especially professionalism बहुत कम है। and मुझे ये बहुत बुरा लगता है, लाइक अगले दिन ही मेरा ही एक असिस्टेंट होता था, उसने काम शुरू कर दिया अपने नाम से, मेरे ही क्लाइंट को ले गए, चले भी गए, काम भी करा लिया, काम खराब हो गया, फिर क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया तो मेरी हंसी निकल गई। मैं गया, मैंने देखा, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि किसने किया है, मैंने वो काम देख के आपको पता चल गया किसका? मैंने कहा कि मेरे ही लड़के ने किया, ये इस लड़के ने किया। क्योंकि जब आपके साथ लोग काम करते हैं ना, तो आपको जब आपके काम को कॉपी भी करते हैं, आपको उनकी मिस्टेक्स का पता होता है कि ये चीज़ नहीं कर सकेगा। But hiring the right person is also important. Because I wouldn't say कि I am right for all the projects. I'm not. आपका जो टेस्ट है, आपका जो स्टाइल है, किसी और का कुछ है। I can work in different styles also, but I feel that, for example, for a commercial project, I don't think I'm a good choice. अच्छा। Residential के लिए बहुत से किए हैं. I mean, I've done salons, I've done stores and all. But I feel that my work is with a lot of detail. एंड इसमें डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं। कमर्शियल काम उन्हें चाहिए था ठक जल्दी कमर्शियल काम, ये वो, एंड उसमें फिर दे एंड अप स्पेंडिंग मोर। मैं महंगे आइडियाज़ दे दूँगा या सस्ते आइडियाज़ भी मैं देता हूँ, बट आई जस्ट फील दैट आई एम मोर ऑफ अ रेजिडेंशियल person. You luxury, Hamza. So I guess that's the thing. So I don't take a lot of commercial. Right? Apartment buildings I can,
बट जो होता है ना शॉप्स एंड वो मैं नहीं कर सकता, Right. बिकॉज एक तो आई हार्डली हैव टाइम, एंड नाउ बिकॉज अब फर्नीचर भी आई डोंट मेक सोफाज एंड रैंडम थिंग्स, बिकॉज अगर वो तो बाजार में भी मिल जाते हैं ना, आई मेक थिंग्स दैट नो वन एल्स कैन मेक बेसिकली। मतलब अगर किसी को पूरी क्रिस्टल की एक मेज चाहिए जो कोई और नहीं बनाएगा, तो देन आई विल मेक दैट, और आई मेक things that are one-off pieces. Like I make vases, I blow glass, I make vases, I make one of kind pieces type चीज़ें बनाता हूँ, क्योंकि अब इतनी choices आ गई in the market. You have imported furniture, you have regular का बना हुआ furniture, तो लोगों को chance देना चाहिए ना। मैंने अगर अपनी design fees ले ली है, तो फिर अब मैंने हर एक सोफे में 10-20 हज़ार रुपए बना के क्या करने हैं? वो औरों को chance देना चाहिए, बाजार से लेनी चाहिए चीज़ें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आई मेक थिंग्स जो फिर कोई और नहीं बना सकता ना, जो कि एक बहुत ही कोई चैलेंज होता है, देन आई मेक दोस्त। आपके पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त बहुत हैं? बिल्कुल हैं मेरे पास शुरू से इंटरनेशनल, क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ इन अमेरिका एंड देन आई केम हियर, सो आई हैड डन अ लॉट ऑफ लाइक सेलिब्रिटी होम्स देयर आल्सो पहले, लाइक डेविड कैसिडी एंड ऑल ऑफ दीज पीपल. That's how I started, but then and I worked with Fendi Casa also. That's how I brought their brand यहाँ पे. यहाँ पे काम बहुत फ़र्क है. बाहर काम करना बहुत आसान है, क्योंकि बाहर एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल, हर चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में. यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है. बी इट एक पर्दे का टैसल हो टू अ लाइट फिक्सचर, अगर वो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे, या वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है या आपको बनानी पड़ती है. एंड मैंने 4 साल पहले ही ना ये फिगर आउट कर लिया था कि इम्पोर्ट्स और नो इम्पोर्ट्स बनानी शुरू कर देनी चाहिए चीज़ें. तो हम अब आप ये दिन देख रहे हैं जब नहीं हो रहा, तो हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि हम 4 सालों से खुद ही बना रहे हैं हर चीज़. बट वी हैव लाइक आई एम डूइंग अ हाउस इन अमेरिका राइट नाउ ऑल्सो. बट अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बिलीव करते हैं. जो मेरे पीसेस वन ऑफ पीसेस होते हैं वो हम वैसे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो लाइक वो पूरा घर हम वहाँ पे करें, लेकिन हम सारा कुछ यहाँ से बना के देन वी आर सेंडिंग इट टू अमेरिका. एंड इसी तरह भी whether we do it in Dubai or in England, so we make the stuff here and then we send it and then I go set it up there. अच्छा हमजा, with your style, with your personality, आपका जो टेस्ट है उसको शायद बहुत लोग नहीं समझ पाए पाकिस्तान में. शायद सिर्फ 2% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो उस चीज़ से रिलेट कर पाएगी. आपके लिए बाहर की ज़िंदगी क्या बेहतर नहीं थी, ज़्यादा मुनासिब नहीं थी, जहाँ पे आपके स्टाइल को समझा जाए, आपका जो टेस्ट है उसको समझा जाए, उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैं जब पाकिस्तान नहीं आया था, तो आई गेस तब आई वॉज द ओनली सन एंड आई एम लैंडलॉर्ड पीछे से भी, तो आई हैड टू कम बैक नो मैटर व्हाट. सो आई वॉज डूइंग वेरी वेल देयर. दिल पे पत्थर रख के आए थे? दिल पे पत्थर इतना नहीं रखा, तब तक इतना रखा नहीं था. बाद में फील हुआ था जब आ गया था, तो ये क्या हुआ है. जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, टू अ पॉइंट दैट जब मैंने स्टोर अपना खोला था एंड हम तो सिर्फ इटालियन फर्नीचर रखते थे, या तो जब मैं लोगों के घर यहाँ करने शुरू किए तो nobody sold me furniture. Any store and every store I went to, they refused to sell me furniture, saying that मैं उनका फर्नीचर कॉपी कर लूँगा, जबकि मेरे स्टोर की चीज़ें कॉपी हो के वहाँ पे पड़ी हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो बाहर से लाया था चीज़ें. बिल्कुल. So I was forced to make furniture myself, and so I went to then Italy. I learned how to make furniture Forlì में, and then I came back and I set up my plant because people were not welcoming at all in the beginning. Other people in the industry, they were not, क्योंकि एक तो मैंने स्टोर खोल लिया, वो इम्पोर्टेड चीज़ें आ गई. शुरू में एक तहलका मचा हुआ था कि जी इम्पोर्टेड फर्नीचर, डिज़ाइनर फर्नीचर है क्या. So we would just have 200 people every day who would just visit. पहले तो समझाना पड़ा आते थे कि क्या चीज़ें हैं, ये क्यों है, ये सारा कुछ क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, वाइट क्यों है सब कुछ, ये क्या है. So we explained that concept. हम लोग लोगों को टूर्स देते थे, समझाते थे. नहीं भी लेना होता था तो फिर भी मेरी स्टाफ को ये ट्रेनिंग होती थी कि यू हैव टू टेल पीपल कि ये मॉडर्न म्यूजियम ऑफ आर्ट में कुर्सी है तो ये ऐसी क्यों है. ऐसे कितना मुश्किल होगा वो दौर. बहुत मुश्किल था शुरू में. एंड देन जब घर मुझे करने पड़े शुरू में, तो लाइटें नहीं मिलती थी, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. अब मुझे आदत थी वहाँ जाना अमेरिका में, यू कॉल समवन, यू गो ऑनलाइन, यू
अब बहुत चेंज हो गई हैं चीज़ें। अब बहुत चेंज अब बहुत चेंज हो गई। शुरू में तो बहुत मुश्किल, तब तो मैं जब यहाँ नया नया आया था तो 2 महीने बाद मेरा रोना निकल गया था। बट देन आहिस्ता आहिस्ता नाउ आई फील दैट अगर मैं वहाँ रहता तो मैं तब ये सोचता था कि मैं वहाँ हज़ारों में एक हूँ, यहाँ मुझे एक बनना मतलब आसान होगा। लेकिन नहीं, वो मुश्किल था। नहीं, आई थिंक शायद मैं भी आई वाज लकी, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आई गॉट टू दैट लेवल। पॉपुलैरिटी तो आपको इंस्टेंट मिल गई थी, लेकिन आपके पुराने दोस्त भी यहाँ पे बहुत, एक सोशल सर्कल भी था, लोग आपको जानते थे। दोस्तों से कितना सपोर्ट मिला उस वक्त? तो दोस्तों से शुरू में सपोर्ट एज फार एज PR एंड प्रमोशन वाइज तो बहुत मिला था। देन अ लॉट ऑफ माय पेरेंट्स फ्रेंड्स एंड दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल, उधर से भी काम मिल वो तो बिकॉज द प्रोडक्ट वी ब्रॉट वाज समथिंग दैट वुड अट्रैक्ट एवरीवन। इट डिड अपील टू दिस पर्टिकुलर क्लास। हाँ, तो वो हमारा, लेकिन एक ये हो गया था कि शुरू से ही हमारा हो गया था कि जो दी सुपर एक्सपेंसिव सुपर रिच पीपल ओनली गो टू कासा हमजा, बिकॉज हम लोग इटालियन चीज़ें रखी हुई थी। 15-15 लाख का सोफ़ा पड़ा होता था वहाँ पे बैक इन द डे। सो एंड देन ये पहले वो हमारे साथ हुआ ये था कि सेकेंड डे ऑफ द स्टोर ओपनिंग हम कॉल आ जाती कि जी द प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ वुड लाइक टू विजिट। अब वो सिर्फ देखने आई थी एंड आई स्वेयर उन्होंने कुछ नहीं खरीदा था, बल्कि मैंने उनको एक प्लेट तोहफा दी थी और वो सड़क बंद हो गई, वो एक हल्ला गुल्ला मच गया। अगले दिन अखबारों में छप गया कि जी वो तो 6 करोड़ की शॉपिंग वहाँ इस स्टोर से हो गई है। एंड आपकी मार्केटिंग हो गई। तो हमारी मुफ्त मार्केटिंग बहुत हो गई थी एंड वो एक इमेज बन गया था। एंड बिकॉज वी गॉट द इंडस्ट्रियल फैमिलीज, ये सारी शुरू में हाँ हमें बहुत फ़ायदा हुआ था इस चीज़ का कि बट देन हमारी एक इमेज बन गई थी कि लोग आम लोग नहीं आते थे हमारे स्टोर में। Past couple of years have been very tough for you। मेरे ख्याल में आपकी सेहत को लेके, वालिद साहब के गुजर जाने की बात, ये जो पर्सनल ट्रॉमा होता है ये काम पर ज़रूर किसी ना किसी तरह असर करता है। क्या आपके काम पे किया? बिल्कुल, एक्चुअली इन अ गुड वे एंड अ बैड वे। About 6 years ago I was diagnosed with cancer. I had leukemia, acute lymphoblastic leukemia. मुझे पता भी नहीं था, कोई एक दिन बस I woke up and I couldn't breathe properly and I went, they said खून ही नहीं आप में तो। So and I was given time of about a month कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचोगे। मुझे तो lot of the cancer hospitals in this country didn't even, I'm not going to name them, but they didn't even accept me as a patient because they said that फ़ायदा नहीं है। And I was put on almost like मशीनों पे था मैं and बस then as you say something happened, luck happened or what happened, अल्लाह की तरफ से था। I went to America for my final treatment. In 3 months I was back to being alive, happy, and my cancer has been in remission for now so many years and I'm absolutely fine. But during that time period मुझे अपनी बीमारी का इतना ज़्यादा धचका नहीं लगा था, मुझे लोगों की behaviors का धचका ज़्यादा लगा था। Because a lot of the friends that I thought would be there for me when I was unwell were not there for me. And आप expect उसी वक्त कर रहे हो। आप expect उसी वक्त कर रहे होते हो। अब मेरा घर हमेशा ऐसे होता था कि you know 300 दिन पार्टी हो रही होती थी वहाँ पे 360 में से आना जाना लोगों का। एंड मैं ये सोचता था सब लोग कहाँ गए जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं एंड वेरी फ्यू पीपल लाइक मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका मैं कह सकता हूँ जो डेली आते थे एंड जिनका मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था वो लोग आ गए, बट जो मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त थे वो नहीं थे। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने को बातें भी शुरू कर देते हैं लोग। वो तो ऑब्वियसली आपको, जब मैं अमेरिका जा रहा था इन लोगों ने बातें शुरू कर दी कि ये तो पता नहीं फ्रॉड करके भाग रहा है, कोई कह देते थे कि जी ये तो बाहर जा ही नहीं सकता, कोई कहते थे तो वापस ही नहीं आना। होता है कोई बाहर शिफ्ट भी हो रहा तो कहते हैं पता नहीं कोई मसला है इसलिए हो रहा है। एंड आई वुड जस्ट लाफ एंड मैंने कहा चलो लेट टाइम पास बाय, यही लोग फिर आएंगे, यही सब कुछ फिर होगा।
एंड वैसे ही होता है. बट दिस एक्सपीरियंस, ये जो पूरा It was very traumatizing. लेकिन इसने आपको बहुत मैच्योर भी किया होगा, आंखें खोली होगी. I tell you that मैं हमेशा कहता हूँ कैंसर was the best thing that ever happened to me. And people हंसते हैं इस बात पे. क्योंकि आप तो दोबारा रॉक एंड रोल करते हुए आ गए वापस. मैं वापस आ गया, लेकिन I came back as a changed person. मैं पहले देखिए, I started working when I was 17 and I lived the American dream. I went there on a scholarship. You definitely did. Something happened and all of a sudden I became this designer and you became an overnight star in Pakistan as well. Yeah. So I lost that वो जो youth में एक आपका growth होती है और एक आपको modest कैसे होना चाहिए, या मैं पागल हो गया हुआ था literally, and I was not a normal human being. I was absurd. अब मैं सोचता हूँ मैं बिल्कुल एक crazy सा बंदा था. I was spending more money left, right and center और बस parties and हल्ला गुल्ला and ये वो. काम में भी मैं इतना serious नहीं था. किसी को जज नहीं करना कि मेरा दोस्त है या नहीं, अच्छा है बुरा है, जो भी है. मैं काम में भी I mean उस ज़माने में मैं अपना काम अच्छा ही करता था, but अब मैं वो काम देखता हूँ तो I really judge myself कि मैं इतना time नहीं दे रहा था काम को. And I think this whole experience, it opened my eyes. It made me value life more. It made me realize that family is family at the end of the day. कि आपके माँ बाप जो होते हैं आपके भाई बहन जैसा दोस्त नहीं हो सकते जो भी हों, और अगर जो दोस्त होते हैं बहुत अच्छे, आप बहुत लकी होंगे अगर अपने दोस्त 5 उंगलियों पे गिन लें, और उन दोस्तों के साथ आपको अच्छा रहना चाहिए. एंड काम के अंदर when I was sick and मुझे था कि अगर मैं आज मर जाता हूँ तो मुझे लोग किस बात पे याद करेंगे कि मैं बहुत पार्टियाँ कराता था या करता था. So I made it a point that अगर if I get another life then I'm going to do things and I'm going to make things that people remember me by. कि वो याद रखेंगे कि ये यार हाँ इसने ये चीज़ अच्छी बनाई थी यार. So I spent 4 years after that trying to do things that, and I literally it opened up a side of my brain that अब मैं इतनी different चीज़ें करता हूँ काम related भी. So I really think that cancer was a blessing for me, that it changed my whole perspective of life. I see people differently. I see जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, जो उन लोगों को मैं बहुत पहले मेरे वेंडर्स ने ज़िंदगी में मेरे से वो बात ही नहीं कर सकते थे, मेरे तक वो पहुँच ही नहीं सकते थे. वो कभी सोचते नहीं थे कि जी इनसे भी हमारी बात होगी. माई स्टाफ वुड टॉक टू देम, माई क्लाइंट्स भी मेरे स्टाफ से बात. अब आई पर्सनली स्पीक टू एवरी सिंगल क्लाइंट. रात के 2 बजे में हो, 3 बजे में हो, none of my staff is allowed to speak to my clients, only I will speak to them. My labor walas, I talk to them personally, and what that has done is it makes me realize that sometimes it's not their fault. Sometimes हमारी गलती होती है कि हमारा मैसेज नहीं सही कन्वे हुआ होता. बिल्कुल. या गलती तो हर इंसान कर सकता है ना, इसमें इतनी मेरे से बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं. एंड आई बिलीव कि गलती हो जाए ना तो उसमें सच बता देना चाहिए. बिल्कुल. झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई मेक अ ब्लंडर इन माय वर्क, मैं क्लाइंट को जब जाके बता देता हूँ कि जी मेरे से ये गलती हो गई है. I do that and you know it's funny that most of the time they say it's okay. क्योंकि एडमिट कर, हाँ कि एडमिट कर लिया. एंड नाउ इससे फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स कह देते हैं कि हमजा वी ट्रस्ट यू. अगर चीज़ नहीं सही होगी ना आप खुद ही सही कर देंगे, वी डोंट हैव टू लुक एट इट. मेरे क्लाइंट्स कईयों को ये बात है कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं घर देखने जाता हूँ जब लोगों के, तो वो नर्वस हुए होते हैं कि हाय अब इसने कहते हैं कि बहुत बुरा है. किया है आपने ऐसा? आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो मैं उनको जाके कहता हूँ ये आपने क्या किया है, ये क्यों किया है. सो थोड़े से घबरा जाते हैं कई दफ़ा लोग, बट देन आई एक्सप्लेन टू देम कि देखिए आई गिव अ रीज़न फॉर एवरीथिंग एंड आई गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की, कि अगर आप ये इसको ऐसे कर लेते तो ये इसका ये फ़ायदा होता. लेकिन फिर मैं उनको तसल्ली भी दे देता हूँ कि अभी ये हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा. बिकॉज आई डोंट लाइक कि यू नो आप एक बेचारे ने दी मेहनत से बंदे ने घर बनाया होता है, इतना पैसा लगाया होता है, पहले मोमेंट में तो आप उनका दिल तोड़ देते हैं ना. हाँ, वो रियलिटी चेक फिर आप उनका दिल जोड़ते हैं. फिर मैं जोड़ता हूँ. वो बात सही है, बट आई थिंक बताना ज़रूरी होता है. कई लोगों को मेरे लिए बहुत, जिस तरह आपने कहा कि आपका स्टाइल बहुत डिफरेंट था, एंड जब मैं यहाँ आया था तो कई क्लाइंट्स के साथ तो मुझे जब मैं काम करने वो कहते थे बस गोल्डन हो जाए सब कुछ, कार्विंग हो जाए सब कुछ. तो मैं
I would then slowly बड़े प्यार से समझाता था कि देखें ये सब गोल्ड नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है, गोल्डन करेंगे बट थोड़ा थोड़ा इसको कम करते जाते, आहिस्ता आहिस्ता। फिर उनको मैं दिखाता था, समझाता था। कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। फिर उनके लिए हमें इसलिए 3D रेंडरिंग्स का काम फायदा आता है कि जब हम पूरे कमरे की इमेज पहले दिखा देते हैं, गोल्डन आप दिखा देते हैं इमेज, फिर वो कहते हैं अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आपने जितना कहा था उतना अच्छा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्लाइंट बहस कर रहे होंगे, बहस करेंगे मेरे से, बात करते 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 नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये नहीं अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ एक तस्वीर खोल के दिखा देता, फिर वो खामोश हो जाता। सो 3D रेंडरिंग्स रियली हेल्प अस कि आप क्लाइंट को दिखाना चाहिए। देखें आजकल ये जो इंटीरियर डिजाइनर्स पिंटरेस्ट से तस्वीरें खोल के जी ये आपका कमरा बन जाएगा, एंड वो बनता नहीं है एंड में, क्योंकि वो कमरा वो होता नहीं है ना, जब स्केल होता है, चीजों का, लाइटिंग होती है। एंड आई डोंट लाइक दैट, आई हेट दैट। आप हमारा हर काम हम महंगे होंगे, हमारी डिज़ाइन फी होगी, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि ना वो डिज़ाइन पहले बना होगा ना वो दोबारा बनेगा। That's what I'm saying, these pop-up stores जो सोशल मीडिया पे हैं, जब ये Pinterest से तस्वीरें दिखा देते हैं क्लाइंट को, तो गलत एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं और चीज़ गलत डिलीवर होती है। Pinterest is a great application for inspiration, references, inspiration। किसी पेंटर को समझाना है कि मुझे इस फिनिश का पेंट चाहिए, तो वो पेंट फिनिश निकालने के लिए आप आई यूज Pinterest, बट आई यूज इट फॉर मूड बोर्ड्स एंड रेफरेंसेस, नॉट एन इमेज पूरी निकाल के दिखा दो। अब हमारी 3D रेंडरिंग बिकती है मार्केट में 50-50 हज़ार की, वो बिकती है कि लोग लेके बस क्लाइंट को दिखा देते हैं कि ये बना देंगे। वो रहता बात है, वो बनती नहीं है क्योंकि उसमें इतनी डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी डिटेल से आपका पूरा कमरे की लुक बदल जाती है। एक लैंप की लाइट से, एक बल्ब से आप पूरे कमरे की लुक बदल देते हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन टू क्लाइंट्स कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करें, बिकॉज आपके पैसे बचेंगे। आप चीज़ें ले लेते हैं, चीज़ें फिर ज़ाया होती हैं, पर्दा अच्छा नहीं लग रहा सोफ़े के साथ, सोफ़ा पूरा नहीं आ रहा, मेज़ ज़्यादा बड़ी आ गई है, मेज़ छोटी आ गई। जब आप एक प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो फिर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then he has to make sure that everything falls in the right place in the right time, with the right lighting, with the right colors. ये चीज़ें बहुत important। I always explain to my clients, वो colors के अंदर especially जब बात आती है ना, मैं जब भी मिलता हूँ किसी को तो I observe them, and from their dressing sense, from the way they wear jewelry, from the way they do makeup, आपको उनकी ना पर्सनालिटी समझ आ जाती है। कुछ लोग ज़्यादा मिनिमल होते हैं, कुछ ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट होते हैं, कुछ ज़रा भड़कीले होते हैं। हाँ, भड़कीले होते हैं। सो देन आई गेस आई कैन रीड फेसेस। या एक अभी तक तो ये है कि अभी तक कभी गलत नहीं हुआ। जब भी हम अपनी तरफ से एक डिज़ाइन दिखाते हैं, हम क्लाइंट को देखते हैं, मुझे समझ आ जाती है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। कई होते हैं क्लाइंट जो कि थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, एक दो ही मेरी ज़िंदगी में रहे हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई। मतलब वो ब्लैंक कैनवस होते हैं ना, जो कई लोग होते हैं बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। That is tough then, because उनको जो भी मतलब I'll tell you, एक क्लाइंट के लिए मैंने 28 एक कमरे के डिज़ाइन बनाए थे, 28 डिज़ाइंस। He still didn't know what he wanted. And इतनी confusion। वो समझ ही नहीं आया। कलर्स मैं पूछा था कि कलर आपको क्या पसंद है, I don't know मॉडर्न, I don't know। तो फिर एट द एंड मैंने क्या था कि अच्छा मुझे फिर अब कर लेने दे, मैं अपनी मर्जी कर। Then you did what you wanted to do. I wanted to do, and then he really liked it. So wish you all the best, and I'd like to hear more stories and some fun facts about you, but definitely in the next episode. So thank you so much. Thank you so much.